then you feel bad about it. Then you want to work towards it. आप उसके लिए काम करना चाहते हैं, उसको सुधारना चाहते हैं, फिर वो सुधारने का तरीका नहीं मिलता है, फिर लगता है कुछ तो अच्छा कर लेते हैं, कुछ तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर दोस्तों के पास जाते हैं, देन यू फाइंड कि आह, कोई सॉल्यूशन नहीं है यार इस चीज़ का। इसका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है लाइफ का, एंड दैट इज़ बिकॉज़ देयर इज़ नो सॉल्यूशन टू थिंग्स, like this kind of things, your mental illness. There is no solution. There is no permanent solution actually. So you have to be like this. You can be like this. Or you can choose. आप एक्चुअली चूज कर सकते हैं कि आपको ऐसे रहना है या आपको नहीं रहना है. That makes it more difficult. So every single day you see yourself like this. Once you are happy, once you are, you are able to do everything and anything, and then suddenly you are down to ground and you are struggling to do the smallest of the thing. I mean, मतलब जब सोना भी मुश्किल हो जाए तो फिर क्या बोल सकते हैं, सोना भी कितनी बार कितना मुश्किल होता है ना. So for which I said silent sorrow, I suffered without understanding the reason for my suffering. We say that unsophistication makes a man empty, and that emptiness makes him carefree. But the sensitive boy who feels much and knows little is the most unfortunate creature under the sun, because he is torn between two forces. The first force elevates him and shows him the beauty of existence through a cloud of dreams, and the second ties him down to the earth and fills his eyes with dust and overpowers him with fears and darkness. How sometimes I feel like it is so beautiful now that you are depressed, you are having that anxiety attack, those panic attacks, and then suddenly you will start realizing everything at once and start seeing, believing, जो है ही नहीं उसके बारे में भी आप सोचते हैं, जो हो ही नहीं सकता उसके बारे में भी आप सोचते हैं. You overthink about it, overthinking becomes a problem. But then for me overthinking has never been a problem. Overthinking कभी इशू था ही नहीं मेरे लिए, क्योंकि आई ओवरथिंक अ प्रॉब्लम, एकदम ऐसा डीप में जाके वो प्रॉब्लम के बारे में सोचना क्यों है, कैसा है, क्या होगा, नहीं होगा, क्या कर सकते हैं उसके लिए, क्या नहीं कर सकते हैं उस चीज़ के लिए. एंड देन सडनली दैट ओवरथिंकिंग, वो ओवरथिंकिंग ही एक सॉल्यूशन लेके आता है. That overthinking provides me a solution that this can be done. You can ignore so and so, you can do so and so, and then you can have a solution to it. But then somewhere you crave, you know, वो क्रेविंग होती है ना, वो चाहत होती है किसी चीज़ की. जैसे पिज़्ज़ा खाने का मन करता है, सो यू आर क्रेविंग फॉर दैट पिज़्ज़ा, यू आर क्रेविंग फॉर दैट पेस्ट्री, यू आर क्रेविंग फॉर दैट, वन कप ऑफ गुड टी. चाय सिर्फ चाय नहीं होती है ना, चाय के साथ यू नीड अ गुड कंपनी टू हैव इट. Unless you don't have a good company, how can you have tea? I mean, you can have tea, of course you can have, but still, having a good company makes more sense, no? Having tea is good, right? Yeah. So, knowing the reason of the suffering, knowing the reason to your sadness, to your happiness, to the thing that you are feeling right now, knowing the reason becomes really important. But then my psychology says that छोड़ो ये सब यार, क्या है, खुश हो तो खुश रहो ना, दुखी हो तो दुखी रहो ना, थोड़ी देर की तो बात है, फिर ठीक ही हो जाएगा. अरे वो ठीक ही नहीं होता है रे बाबा. ऐसा फिर वो कंटिन्यूअस एक लूप है जो चलता रहता है, वो लूप कभी खत्म ही नहीं होता है. दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, हाउ टू एंड दैट लूप.
They don't know how to end that loop. And then you have these two things, no? One sophistication, you become simple. आप बिल्कुल ही चीज़ों को आसान तरीके से देखने लगते हैं, आसान तरीके से सोचने लगते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसको कितना आसान कर सकते हैं। तो जैसे धागा उलझा रहता है ना, वैसे अगर अपने हम लोग ख़्यालों को सुलझाएँ और एक-एक लेयर को हटा-हटा के उसके बारे में सोचते रहें, एक-एक परत जो है, हर एक परत हटती रहे, तो फिर ऐसा कैसा खाली-सा एहसास होता है, खालीपन लगता है कि ओह! ये तो था ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ये तो बस हमने बनाया है, हमने सोचा था तो उसकी वज़ह से है ऐसा ये। एंड जब भी आपको ये रियलाइज़ होता है कि ये तो कितना आसान है, कितनी आसानी से इसको कर सकते हैं, है ना? तो देन यू फील दैट एम्प्टीनेस। Actually, that is not emptiness. That is, uh, that is a solution to the problem. That emptiness sometimes, most of the time actually, that emptiness comes with a solution. When you unsophisticate things, जब आप चीज़ों को बिल्कुल तह तक सुलझा लेते हैं और चीज़ें बिल्कुल ही आसान और सरल तरीके से दिखने लगती है, तो वो कितना ईज़ी हो जाता है ना, कितने आराम से हम लोग कर लेते हैं। देन यू हैव दिस फीलिंग ऑफ बीइंग केयरफ्री। हर चीज़ उलझ जाता है, देन फिर एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, आप चीज़ों को उलझाते हैं, फिर सुलझाते हैं, बट दिस इज़ लाइफ, राइट? बट देन फिर से वो क्वेश्चन वापस आ जाता है, व्हाई दिस थिंग? लेकिन सेंसिटिव होना भी सेंसिटिव प्लस जो लोग सेंसिटिव होते हैं ना, वो लोग थोड़ा ओवरथिंक करते हैं। वो ओवरथिंकिंग होती ही है, क्योंकि बीइंग सेंसिटिव, इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम विद द ट्रस्ट। अगर आप सेंसिटिव हैं चीज़ों को लेके, तो आपको ट्रस्ट इश्यू होगा ही होगा। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कोई सेंसिटिव है और उसको ट्रस्ट इश्यूज नहीं है। इफ यू आर सेंसिटिव टू थिंग्स, यू विल हैव ट्रस्ट इश्यूज, एंड दैट ट्रस्ट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इश्यूज। आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो होता नहीं है। कितनी मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। नहीं, मेरे साथ ऐसा है कि था नहीं, हो गया है। आई इट्स बीन लाइक रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू ट्रस्ट पीपल नाउ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी या होनी भी चाहिए थी इन अ वे। So that makes me, I'm standing at a point where I cannot trust anyone. It's like really difficult for me to trust anyone, because कैसा होता है ना कि आप बिल्कुल ही भरोसा करके किसी को कुछ ऐसी बातें बोलते हैं, एंड देन यू फील लाइक इसका कोई सेंस नहीं था। वो आपके लिए सेंस नहीं था, क्योंकि वो सामने वाला इंसान है ना, वो आपको ऐसा फील कराता है कि दिस इज सेंसलेस, दिस इज बेसलेस। आप जो बातें बोल रहे हैं या जो आप चाहते हैं, उसका कोई सेंस नहीं है, उसका कोई बेस नहीं है, ये होना ही नहीं चाहिए था। दैट बिकम्स लाइक रियली बोरिंग यार। आपके लिए वो कितना मैटर करता है। पर हाँ, लाइक स्वामी जी ने बोला कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं आप ही सॉल्व कर सकते हैं। सो आपका जो प्रॉब्लम है आप ही सॉल्व कीजिए, लेकिन आप अकेले प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम में हैं तो आपको सॉल्यूशन दिखना बहुत ही मुश्किल है, और आपको वो प्रॉब्लम्स बड़ी आसानी से दिखते रहेंगे ऑल द टाइम। तो उसको सॉल्व करने के लिए या उसको शेयर करने के लिए या उसके तह तक जाने के लिए आपको ओवरथिंक करना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो इनटू दैट स्टेट वेयर यू कैन think about the solution, think about the problem in like very deep. And if you get someone to talk about it, if you get someone to share about it, the whole process becomes so easy. एक बार में पता चल जाता है कि क्या हुआ था, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।